So अभी अपन लेसन के अंदर जाएंगे. We'll get into the lessons back again. Leviticus 23rd chapter. लेवी व्यवस्था 23वां अध्याय. Let us read the 5th verse. 5वें वचन को पढ़ेंगे. In the 14th day of the first month at even is the Lord's Passover. अभी हम Passover के बारे में अपन देखेंगे. We're gonna see about Passover. ये पहला फेस्टिवल है. This is the first festival. और ये Feast. फीस्ट के अंदर In this feast, जैसे मैंने कहा था हर एक नाम के पीछे एक सिचुएशन होता है. so as I said, there's a situation behind every name. सो ये पासओवर के पीछे भी एक सिचुएशन है. Even there's a situation behind this Passover. पासओवर को हिब्रू में बोलते हैं पेशाक. We say Pesach in Hebrew. और इसे हिब्रू में लिखने के समय And when we write it in Hebrew, उसमें 3 अक्षर आता है. there are 3 alphabets. और वो तीनों अक्षर मैं यहाँ पर लिखे डालता And all the 3 alphabets, I'll write it here. पहला अल्फाबेट जो है पे, First alphabet is Pe, सेकंड अल्फाबेट सामेक, second is Samek, और तीसरा जो है खैत. and third is Kate. ये 3 अक्षर मिलकर And together these 3 alphabets, इसे अपन पेशाक करके बोलते हैं. we call it as Pesach. Now, जैसा अपन सवेरे अपन देखे थे, And morning we already seen it. जब भी बच्चों को नाम दिया जाता है, Whenever we name a child, एक सिचुएशन होता है, उसके हिसाब से नाम दिया जाता है. there is a situation and according to that situation we name it. सेम वे Same way, प्रभु ने इस फेस्टिवल को नाम दिया, when God named this festival, पेशाक करके नाम दिया. when he named it as Pesach, और इस नाम के पीछे एक सिचुएशन है. there is a situation behind this name. और क्या सिचुएशन है? What is the situation? इंग्लिश में क्लियरली अपन बोलते हैं पास ओवर. We clearly mention in English that it's Passover. सो प्रभु उनके ऊपर से पास हो रहे हैं. So Lord is passing over them. इसलिए वो पर्व का नाम हो गया पास ओवर. That's why this feast is called as Passover. उसको पेशाक करके बोलते हैं. They call it as Pesach. Now इसमें और एक बात भी छुपा हुआ Now है. there is one more thing hidden in it. हर एक नाम के अंदर एनर्जी होता है. There's an energy behind every name, in every name. हर एक डिकोडिंग के अंदर एनर्जी लेवल डिकोडिंग है. In every decoding, there's an energy level decoding. आज अपन सिर्फ ओनली डिकोडिंग करके अपन देख रहे हैं. Today we are seeing it as decoding. लेकिन एनर्जी लेवल डिकोडिंग भी है. But there is an energy level decoding ये also. एनर्जी लेवल डिकोडिंग क्या है? What is this energy level decoding? Now, जैसे कि मैंने कहा था, आप जन्म होने के समय, As I said, when you were born in this world, आप जन्म होने के समय वो सिचुएशन जो था, whatever the situation was, वही सिचुएशन आपका नाम बन जाता है. that situation becomes your name. क्योंकि आपका जन्म के समय में Because during your birth, वहां पर क्या क्या संभावना हुआ है, what all had happened that ये place, सब एनर्जी लेवल है. that is an energy level. एवरी एनर्जी इज एन अल्फाबेट. और हर एक एनर्जी जो है एक अक्षर है. हर एक एनर्जी में एक एक अक्षर है. And every energy is an alphabet. और ये अक्षर को आप जोड़ देंगे, And if you join them, वो एक एक वर्ड बन जाता and है. it becomes a word. सो यहाँ पर पेशाक, Now here Pesach, ये पेशाक जो है दैट इज उसका मतलब है उछल कर जाना. Pesach means passing over. किसके ऊपर से प्रभु पास हुए? Where did Lord pass over? यहूदियों के ऊपर से पास हुए. He passed over the Jews. नो जब अभी पास ओवर करके बोलने के समय When we say Passover, नॉर्मली अपना प्रीचिंग अलग ढंग से होता है. normally we preach in a different way. हर एक द्वार में, In every door, वहां पर क्या लगा रहना चाहिए? what should be there? ब्रेड होना चाहिए. There should be bread. और हर एक के घर के अंदर And in every house, एक लैम्प जो है वहां पर सैक्रिफाइस किया रहना चाहिए. one goat has to be sacrificed. हर एक के घर में वहां पर सैक्रिफाइस हुआ In था. every house there has to be a sacrifice. अंदर भी ब्लड एकदम चीर फाड़ कर आया बाहर. In the house also the blood was spilled everywhere. और बाहर भी ब्लड लगाना है. And outside also we have to put और blood. बाहर जो है सिर्फ डोर का लैंटल में डाल लगाना है. Only on the door we have to place the Now ये blood. डोर में आप देखेंगे यहाँ पर ऐसा ब्लड लगाया जाता So है. if you look at the door, it's placed, the bloods are placed like this. ये
आज अपन फोटो में वगैरह देखने के समय Today, when you view a photo, आप इस तरह यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड, ऐसा दिखाई देगा। it will show that there's a little blood here and little blood there. लेकिन जब कुछ बातें रेगुलराइज हो जाता है, But when something is regularized, तभी थोड़ा थोड़ा लगाने के लिए चालू करेंगे। then they start reducing it. लेकिन मुझे ऐसा लगता है But I think कि जब प्रभु ने कहा कि ब्लड लगाना है, when Lord said you have to paste blood, तो इन लोग इस तरह नहीं लगाए रहेंगे, they might have not put it this way. लेकिन पूरी तरह से लगाए रहेंगे। They might have completely pasted it. सो ये जो है एक अल्फाबेट फॉर्मेशन है। So that's an alphabet formation. ये कौन सा अल्फाबेट है? Which alphabet is it? द लास्ट अल्फाबेट दैट इज खेत। The आखिरी अक्षर है वो है Kate. ये खेत जो है, This Kate, ये डोर के समान दिखाई दे रहे हैं अभी, it looks like a door. है ना? डोर के समान दिखाई दे It रहे looks like door. सो ये पेशाक के अंदर In the Peshach, ये एक एनर्जी लेवल हमें मिल गया, there is one energy level we got. और वो एनर्जी लेवल जो है खेत। That energy level is Kate. ये खेत का मीनिंग क्या है? What is the meaning for Kate? खेत का मीनिंग बहुत सारा है, There are many meanings for it. उनमें से एक मीनिंग जो है फेंसिंग। The one meaning is fencing. ये जो खेत जो है इसका मीनिंग होता है फेंसिंग। The Kate means fencing. सो आज हमारे लिए यहोशुआ का ब्लड ही हमारे लिए फेंसिंग है। Today, Yehoshua's blood is a fencing. आज उस समय में Those days, जब प्रभु उनके ऊपर से पास हो रहे थे, when Lord was passing over them, इस्राएल के चारों ओर एक फेंसिंग था, there was fencing around Israel. और वो फेंसिंग जो है लैम का ब्लड है, And that fencing is the blood of lamb. और ये फेंसिंग के लिए एग्जैक्ट मैचिंग है। देखिए, And this is exact match for सो fencing. पहला एनर्जी लेवल वहां पर आपको दिखाई देता है, So first, you can see the first energy level. उसको बोलते हैं फेंस। We see it as fence. वो किससे फेंसिंग लगाया गया है? How is it fencing? वहां का लैम का ब्लड से फेंसिंग लगाया गया The है। fencing is done by the blood of lamb. और नेक्स्ट थिंग, ये दो अक्षर मिलाएंगे, If you add these two alphabets, इसको बोलते हैं पास। we call it as pass. पास का मीनिंग होता है Pass means ओपन पाम, खुला हुआ हाथ। open palm. ये खुला हुआ हाथ करके मतलब है, It means open palm. पंजा करके मतलब है। It's a palm. सो ये पास का मीनिंग होता है पंजा। So the pass means palm. किसका हाथ है? Whose palm? वो प्रभु का हाथ है। It's the Lord's palm. जब वहां पर ब्लड लगाया जाता है, When there was blood painted, अगर आपके ऊपर प्रभु का ब्लड है, if there is blood on you, अगर यहोशुआ का ब्लड आपका परिवार के ऊपर है, if Yehoshua's blood is on your family, तो प्रभु का हाथ आपके परिवार के ऊपर है। then the Lord's hand is upon your family. कोई भी प्लेग आपको टच नहीं कर सकता, No plague can harm you. कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकता। No disease can touch you. क्यों छू नहीं सकता है? Why it cannot touch? क्योंकि प्रभु का हाथ आपके ऊपर है। Because Lord's hand is on you. क्यों प्रभु का हाथ आपके ऊपर है? Why Lord's hand is on you? क्योंकि यहोशुआ का ब्लड आपके ऊपर है। Because Yehoshua's blood is around you. अगर यहोशुआ का ब्लड आपके पास नहीं होगा तो If there is no Yehoshua's blood, प्रभु का हाथ वहां पर नहीं होगा। then the Lord's hand will not come in. सो इसके वजह से Because of this, लॉर्ड पास्ड ओवर द पीपल, परमेश्वर लोगों के ऊपर से उनके गया. ऊपर से चले गए। Lord passed over the people. सो ये पेशक जो है, The Peshach, एक सिचुएशन है, एक एनर्जी लेवल है। it is a situation and an energy level. क्या सिचुएशन था? What was the situation? प्रभु उनके ऊपर से पास हो रहे थे, Lord was passing over them. और वहां पर क्या एनर्जी लेवल है? And what was the energy level? वहां पर फेंसिंग है, There is fencing. और प्रभु का हाथ उनके ऊपर है। And Lord's hand is on him. आज उसी तरह Same way, आज प्रभु का हाथ आपके ऊपर आना है तो if Lord's hand should come upon you, यहोशुआ का ब्लड आपके ऊपर होना if चाहिए, Yehoshua's blood should be on और you, प्रभु का ब्लड अपने ऊपर है, and Lord's blood is on us. और इसकी वजह से प्रभु का हाथ अपने ऊपर है। That's why Lord's hand is also on us. इसलिए आप भी एक भविष्यवक्ता बन सकते हैं। That's why even you can be a prophet. मोसेस कहता है, Moses says, मैं आप प्रभु के बच्चे सब जन भविष्यवाणी करेंगे तो अच्छा है। Moses says that all God's people, if they prophesy, it would be good. और पौल कहता है, And Paul says, प्रभु का हर एक बंदा अगर भविष्यवाणी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। every child of God, if they prophesy, it is good. और मेरा इच्छा ये है And my aim is this,
मेरा इच्छा, मेरा डिजायर ये है, My desire is this. सब जन डिकोडिंग करना चाहिए, Everyone should start decoding. और वो भी साधारण डिकोडिंग नहीं, And it should not be ordinary decoding. एनर्जी लेवल डिकोडिंग, It should be an energy level और decoding. वो एनर्जी यू कैन पुल इट डाउन, And आप उस एनर्जी को आप नीचे लेके आ सकते you can हैं। pull down the energy. आपका चारों ओर नेगेटिव एनर्जी होगा, There may be negative energy around वो you. प्रभु का सामर्थ्य से नेगेटिव एनर्जी को पुश करके You have to push the negative energy with the प्रभु का power of God प्रभु का पॉजिटिव एनर्जी लेके आना है। and get the positive energy of Lord in you. नाउ पॉजिटिव एनर्जी बोलेगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ? Now, if I say positive energy, what is it? प्रभु का सामर्थ्य को बोल रहा हूँ। We are saying about the presence of God, the So, power of God. हर एक पॉजिटिव एनर्जी में प्रभु का पावर है, Every positive energy is the power of God. वो पावर को आपको पुल करना है। You have to pull that power. सो ये पेशा करके बोलने के समय When we say Pesha, प्रभु उनके ऊपर पास हो रहे हैं। God is passing over them. नाउ अभी इसमें और एक बात अपन देखेंगे, Now, one more thing we'll see in this. ये क्यों ये पेशा हुआ है, ये प्रभु ने क्यों कहा कि लैम्ब को काटना है? Now, why did God say to sacrifice a lamb? क्योंकि फर्स्ट बॉर्न सन को बचाना है, Because they want to save the firstborn. फर्स्ट बॉर्न सन को बचाना है, They want to save the firstborn son. इसके लिए ये पास ओवर है। That's why they had that Passover. आज हमारे लिए वो पास ओवर नहीं है, Today we don't have that Passover, लेकिन हम स्पिरिचुअल पास ओवर मनाते हैं। but we celebrate the Passover क्योंकि spiritually. हमारे लिए पास ओवर कौन है? Because why? Who is the Passover for us? मसीह ही हमारे लिए पेशा है, Christ is our Peshach. वही हमारे लिए पेशा करके सैक्रिफाइस हो गए। He is the one who sacrificed himself. आज ज्यूश पीपल Today Jews, एवरी ईयर उन लोग ये पास ओवर मनाते हैं, every year they celebrate the Passover. एवरी टाइम एवरी ईयर उन लोग मनाते हैं। Every year they celebrate नाउ Passover. अभी वो सेम फेस्टिवल Now the same festival, आज जेंटाइल के बीच में भी आ चुका है। it has also come to आज Gentiles. बहुत से लोग उसे मनाते हैं, Many of them they celebrate. लेकिन ये चीज ध्यान में रखना है, But please, we have to keep one thing in mind. कभी भी बकरा काटने का नहीं। We cannot sacrifice. We रैम cannot काटना sacrifice नहीं ram. चाहिए। We cannot sacrifice ram. हाँ, एक जैसा अपन क्रिसमस मनाते हैं, As we celebrate Christmas, वैसा साल में एक बार अपन मनाने के लिए जाते हैं so, पास ओवर, once a year we go to celebrate the Passover. लेकिन वो पास ओवर में कभी रैम नहीं काटना। But in that Passover, you should never sacrifice ram. अगर रैम को काटेंगे, If you sacrifice a ram, वो क्या इंडिकेट करता है? you know what it indicates? कि आप प्रभु के ऊपर बिलीव नहीं करते करके इंडिकेट हो It जाता है, indicates that you don't trust God. क्योंकि प्रभु हमारे लिए पास ओवर लैम्ब है। Amen. Because God is a Passover lamb. एक बार आपने बिलीव कर दिया ही इज द पास ओवर लैम्ब, Once you believe that He is the Passover lamb, उसके बाद अब फिर से कोकरा काटना ये रैम काटने की जरूरत नहीं है। then you don't have to sacrifice the ram again. लेकिन जूइश पीपल आज भी उन लोग पास ओवर मनाते हैं, But Jews, they today also they celebrate the एंड Passover. सेम थिंग अभी जेंटाइल के बीच में भी आ गया है। Same thing has come between the नाउ Gentiles. ये पेसक जो है, व्हाई दिस पास ओवर, अभी ये पास ओवर क्यों? why is this Passover? एक वचन अपन पढ़ेंगे, Let's read a word. वही एक्सोडस 13वां अध्याय, Exodus 13th chapter, उसका 13 वचन पढ़ेंगे। 13th verse. And every firstling of an ass thou shalt redeem with a lamb, and if thou wilt not redeem it, then thou shalt break his neck, and all the firstborn of man among the children shall thou redeem. Now यहाँ पर बाइबल में लिखा है, And the word of God says, हर एक गधा every ass, वो एक मेमना से छुड़ाए जाना चाहिए। it has to be redeemed with a lamb. Now यहाँ पर गधा क्यों आ रहा है? Why a lamb is coming? An ass is coming गधा here. आने की जरूरत ही नहीं है। There's no need of this ass. ये गधा के बारे प्रभु कैमल के बारे में बोल सकते थे, God might have told about camel, या लायन के बारे में बोल सकते or थे। He should have told about lion. क्यों डोंकी के बारे में प्रभु ने Why कहा? did He mention the donkey? क्योंकि डोंकी जो है दैट इज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। Because this ass is an important character. डोंकी जो है ये बाइबल में बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। The donkey is an important character in the scripture. और कभी कभी हम अपने बच्चों को भी गधा करके अपन चढ़ाते हैं, Sometimes we call our children as kids as donkey, और कभी कभी दूसरों को भी बहुत बड़ा गधा है करके बोल देते हैं। and we also sometimes shout at others saying he's a big donkey. हमारा तमिल लैंग्वेज में In Tamil, गधा करके बोला तो if you say donkey, डोंकी का मतलब होता है the donkey means ब्यूटीफुल वुमन।
It means beautiful woman. तो कोई भी अगर आज से गधा करके किसी को बोला तो If anyone says donkey to anybody, आप ऐसा समझ लिए कि लोग उनको आपको देखकर ब्यूटीफुल वुमन करके बोल रहे हैं। you just think in your mind that they are saying beautiful to you. सचमुच अपन ब्यूटीफुल वुमन है, We are beautiful women. क्योंकि अपन प्रभु का दुल्हन है। Amen. We are God's bride. और बाइबल में लिखा है The word says, इन द फुलनेस ऑफ ब्यूटी, जियोन का जो परिपूर्णता के अंदर से the fullness of Zion, प्रभु महिमा में होंगे। God will be glorified. सो अपन सब जन जियोन का बच्ची लोग हैं। We all are children of Zion. सो अपन परफेक्शन के अंदर आने के समय, When we come into that perfection, वो ब्यूटी के अंदर आने के समय when we come into that beauty, प्रभु हमारे अंदर से प्रकाशित हो जाएंगे। God will magnify from सो us. अभी गधा के बारे में देखेंगे। Well, let's see about this donkey. ये गधा और ये पासओवर के बीच में क्या राज छुपा हुआ Now, है? what is the relation between the donkey and Passover? ना ये पासओवर जो है हमारे लिए मसीह है। The Passover for us is Christ. अब ये डोंकी इसके बीच में क्यों आ रहा है? Now, why is this donkey? डोंकी को हिब्रू में बोलते हैं The donkey is called as अतोन। Aton in Hebrew. अतोन बोलेंगे तो डोंकी। Aton means donkey. ये डोंकी साधारण डोंकी नहीं है। This is not an ordinary donkey. जैसे मैंने कहा था कि हर एक वर्ड के अंदर प्रोफेसी है। As I said, there is prophecy in each word. अतोन के अंदर भी प्रोफेसी है। There is a prophecy in Aton also. भले गधा है, Maybe it's a donkey, लेकिन गधा के अंदर भी एक प्रोफेसी है। but there is a prophecy in donkey. देखो आपको स्नेक के बारे में ज्यादा आपको मालूम है या पता नहीं, मुझे पता नहीं। I don't know how much you know about snake. स्नेक में वैरायटी ऑफ स्नेक्स है। There are many varieties of snake. अपने बीच में नॉनसू ब्रदर है नाइजीरिया से। We have brother Nansu from Nigeria. उनको स्नेक्स के बारे में बहुत अच्छा जानकारी होगा, I think he may have knowledge about snakes क्योंकि उनका जगह में बहुत सारा सांप मिलता रहेगा। because maybe that they, in their place they may get many snakes. ये स्नेक के बीच में बहुत वैरायटी ऑफ स्नेक्स है। There are many variety of snakes. ये एक सांप ऐसा है, There's one snake. आप उसके ऊपर मारेंगे ना, If you hit the snake, वो ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि वो मर चुका है। it will behave as though it's dead. आप उसको ऐसा हिलाकर देखो, You shake it, वो रोल होएगा। it will roll. आप सोचेंगे मर गया है, You may think that it's फिर dead. उसको उठाकर ऐसे दूर फेंकेंगे ना, And when you lift it and lift it to throw, वो उधर से निकल के चले जाएगा। and if I throw and from where it falls, it keeps going. आज बहुत से शैतान ऐसे ही है। Today, many Satans are like that. जब आप भगाने के लिए शैतान भगाने के लिए जाते हैं, When you go to Satan, वो शैतान जब भी आप भगाएंगे आप वो नाचे नाचे नीचे गिर पड़ेगा वो। whenever you pray for that, they will the Satan will trouble them and they will fall. सो हमें ऐसा लगेगा हाँ भी शैतान निकल गया, And we may think that the Satan is gone, लेकिन अंदर ही बैठा है। but it's still inside. लेकिन ऐसा बिहेव कर रहे मैं चले गया हूँ, But it behaves that it's gone. अगला संडे फिर से नाचते रहेंगे। Next Sunday again it starts. और कुछ सांप ऐसा है, And there are some snakes such a way, वो जो जगह में बैठता है wherever it sits, वहां पर एक मार्किंग छोड़ के जाता it है। leaves a marking there. या तो एस टाइप में मार्क छोड़ेगा, It may leave an S marking, या नहीं तो टी टाइप में मार्क छोड़ेगा, or T, या नहीं तो वी टाइप में मार्क छोड़ेगा। or V. सो जो स्नेक के बारे में अच्छा जानकारी रहता है, Those who know about snake, वो निशानी देखकर बराबर बता देंगे they will see that marking, किस टाइप का स्नेक था वो। and they'll tell you what type of snake was it. सेम वे Same. जब प्रभु हमारे ऊपर बैठते हैं When Lord sits on us, तो हमारे ऊपर एक निशानी छोड़ते हैं, He leaves a sign on us. और वो निशानी आज एक गधा के अंदर देखने वाले हैं। And that sign, we're going to see that sign in this donkey. अतोन के अंदर 4 अक्षर होता है। There are 4 alphabets in Aton. एक जो है एलेफ, One is Aleph, उसके बाद ताव, then Tau, उसके बाद वाव, and Vav, उसके बाद नून सोफित। and Nun Sofit. मैं यहाँ पर सोफित नहीं लिखूंगा, I would not write Sofit मैं here. यहाँ पर नॉर्मल नून लिख देता I हूँ would write a normal Nun ताकि सबको समझ में आ जाए। so that everyone understands. ना यहाँ पर 4 अक्षर है, Now there are 4 alphabets. एक एलेफ, One is Aleph, उसके बाद ताव, then Tau, एंड देन वाव, and Vav, और उसके बाद लास्ट में नून। and at last Nun. ये 4 अक्षर जो है, And these 4 alphabets, ये एक भविष्यवाणी है। these are a prophecy. और ये भविष्यवाणी, This prophecy, देखो ये 2 अक्षर ले लेंगे, we'll take 2 alphabets, एलेफ एंड ताव। Aleph and Tau. एलेफ जो है हिब्रू में पहला अक्षर है, Aleph is the first alphabet in और Hebrew, ताव जो है हिब्रू में लास्ट अक्षर है। and Tau is the last alphabet in Hebrew. So who is the first and the last?
कौन आखिर आदि और अंत है? यीशु मसीह फर्स्ट एंड लास्ट है। Christ is the beginning and the ending. यहोशुआ जो है यहोशुआ ने कहा I'm अल्फा एंड ओमेगा। Yehoshua said, "I'm Alpha and Omega." अल्फा ओमेगा ग्रीक वर्ड है। Alpha and Omega are Greek word. ग्रीक अल्फाबेट में फर्स्ट अल्फाबेट अल्फा है In Greek language, first alphabet is Alpha और लास्ट अल्फाबेट ओमेगा है। and last alphabet is तो Omega. अल्फा एंड ओमेगा Alpha and Omega. और हिब्रू में बोलेंगे तो एलेफ एंड ताउ। And if we say it in Hebrew, it's Aleph and Tau. एलेफ एंड ताउ कौन है? Who's Aleph and Tau? एलेफ एंड ताउ मसीह है। Aleph and Tau is Christ. तो ये दोनों अल्फाबेट मिलाएंगे, When we join this alphabet, ये किसको इंडिकेट करता है? whom does it indicate? वो मसीहा को इंडिकेट करता It है, indicates Messiah. यहोशुआ को इंडिकेट करता है। It indicates Yehoshua. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये नून का मीनिंग क्या है? And what is the meaning of Noon? नून का मीनिंग होता है सीड। Noon means seed. सीड का मीनिंग होता है बीज। Seed means the आज seeds. आज अपन सब जन प्रभु का बीज है। Today we all are the seeds of God. सो हम सब जन प्रभु का बीज है। We are all seed of God. ऑन दिस वाव, ये वाव अक्षर, This vav जो है, ये इसका एक्टिविटी क्या है? what is the nature of the वो vav? जॉइनिंग अल्फाबेट है। It is a joining alphabet. दो अल्फाबेट को जॉइन करता है। It joins two alphabets. सो वाव जो है जॉइंस टू थिंग, वाव दो अक्षर को जोड़ता है. दो अक्षर को जोड़ेगा, It joins two दो alphabet. शब्द को जोड़ेगा, It joins two word. दो व्यक्ति को जोड़ेगा। It joins two अभी people, यहाँ two पर person. दो एनर्जी को जोड़ रहे वो। Now it's joining two energy. कौन सा एनर्जी? Which energy is it? एक जो है मसीह का एनर्जी One is the energy of Christ. और दूसरा जो है ब्राइड का एनर्जी। Another one is the energy of bride. दूसरा जो है प्रभु का बीज है। And the second one is the seed of God. हम सब जन प्रभु का बीज है। We all are the seed of God. ये दोनों जन को इकट्ठा ज्वाइन करने के लिए To join both of them, ये गधा ही वही वाव 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 है। this donkey is the vow. ना अभी इसके अंदर क्या प्रोफेसी देखेंगे? Now what is the prophecy in it? ये गधा का जो प्रोफेसी जो है Now the prophecy of donkey, ये दो बार ये एक्शन में आता है ये प्रोफेसी। it comes in two times in action. देखो पहला बार कैसा करके देखेंगे। Let's see how is it in first time. जकरिया 9th चैप्टर Zechariah, the 9th chapter. उसका 9वां वचन अपन पढ़ेंगे। Let's read the 9th words. Zechariah 9. ना यहाँ पर लिखा है, Now the word of God says, जियोन को देखकर प्रभु ने कहा, He says about Zion, जेरूसलेम के बारे में प्रभु ने कहा the Lord said about Jerusalem, कि तुम्हारा राजा आ रहा है। your king is coming. और कैसा आ रहा है? How is he coming? तो देखो जियोन जो है कौन है? Who's Zion? जियोन और जेरूसलेम जो है वो लोग दोनों सीड्स ऑफ गॉड है। The Zion and Jerusalem, they are seeds of God. उन लोग प्रभु के बच्चे हैं। They are Lord's people. प्रभु के बच्चे ये सीड, दिस सीड इज नून इज द जियोन, डॉटर ऑफ जियोन। This Noon is the daughter of Zion. और डॉटर ऑफ जेरूसलेम ये भी ये सीड है। Daughter of Jerusalem is also a seed. इनको मिलने के लिए To join them, कौन आ रहा है? who's coming? द किंग इज कमिंग, राजा आ रहा The है। king is coming. राजा किस में बैठ कर आ रहा है? How is he coming? गधे में बैठ कर आ रहा है। He's coming on the donkey. अतोन के ऊपर बैठ कर आ रहा He's है। coming on a donkey. और ये मसीह और ये सीड दोनों को ज्वाइन करने के लिए And to join Christ and the seed, कौन ज्वाइन करने के लिए कोशिश कर रहा है? who is trying to join it? अतोन कोशिश कर रहा है। Athon is joining it. प्रभु अतोन के ऊपर बैठ गए Lord was sitting on और Athon. किसको मिलने के लिए जा रहे हैं? And where is he ये going? सीड को मिलने के लिए जा रहे He's हैं। going to meet the seed. और ये प्रोफेसी फुलफिल हो गया This prophecy is fulfilled. जब मसीह गधे के ऊपर बैठकर When Christ was on donkey, was जब riding on a एलेफ एंड donkey. ताउ ये अतोन जो वाव के ऊपर बैठकर When Aleph and Tau, when they sat on Athon, जेरूसलेम के अंदर प्रवेश किए, when he entered into Jerusalem, उस समय में ये प्रोफेसी यहाँ पर फुलफिल हो गया है। that was the time the prophecy was Now fulfilled. once again ये प्रोफेसी अभी फुलफिल हो रहा है। Once again, the prophecy is gonna fulfill ना now. आज हम सब जन कौन है? Today, who are we? हम सब जन गधे, We all are donkeys. हम सब जन गधा है, We all are donkeys. हम सब जन अतोन है। We all are Athon. अगर हम अतोन है तो If we are Athon, कौन हमारे ऊपर सवारी कर रहा है? who has to ride on us? हमारे ऊपर मसीह सवारी कर रहे हैं। Christ is riding on So us. एलेफ एंड ताउ हमारे ऊपर है। Aleph and Tau is on us. क्यों हमारे ऊपर है? Why he's on us? क्योंकि जेरूसलेम के अंदर फिर से गॉस्पेल लेके जाना है Again, the gospel has to go back to और वो Jerusalem. गॉस्पेल लेकर जाने के लिए And to take the gospel, प्रभु ने जेंटाइल अतोन को छून लिया
लिया है। God has chosen the Gentile thorn. आज उनके ऊपर प्रभु राइड करते हुए Today he is going to ride on you, प्रभु अपने बच्चों के पास जा रहा है। and God is going to go to their children. Second time that prophecy will be fulfilled. The second time the prophecy is going to be तो ये fulfilled. डोंकी साधारण डोंकी नहीं है। So this donkey is not an ordinary donkey. हर एक शब्द के अंदर आप prophecy देखेंगे। In every subject you will see a prophecy. Now यहाँ पर ऐसा लिखा है, Now there's one thing here. Exodus 13 chapter 13 में, निर्गमन every 13. firstling of an ass, हर पहलौटे का, गधा का पहलौटा, हर एक गधा का पहलौटा every firstling of the ass, वो एक मेमना से छुड़ाए जाना चाहिए। it should be redeemed with a lamb. ये फसलिंग क्या है? What is that firstling? फसलिंग को इब्रानी भाषा में बोलते हैं। What do we call firstling in Hebrew? आप ही प्रोनाउंस करो, इसे कैसा प्रोनाउंस करेंगे? How do you pronounce it? गधा का फसलिंग को हिब्रू में बोलते हैं पेटर। The firstling of donkey is called as peter. इसलिए यहोशुआ जब डिसाइपल को चुन रहे थे, That's why Yehoshua, when he was selecting the who disciples, was the firstling of the disciple? वो कौन पहलाटा था? Peter was the firstling of the disciple. पत्रस ही शिष्यों का पहलौटा था. प्रभु ने बराबर पीटर को चुन लिए। Lord properly selected Peter. वही गधा का पहलौटा है। He is the firstling of the donkey. उस पहलौटा को प्रभु बचाने के लिए To save that firstling, प्रभु अपने आप को पेशाब करके दे दिए। Lord sacrificed himself. सो ये डोंकी का जो पहलौटा, So the firstborn of the donkey, वो पहलौटा जो है उसे पेटर करके बोलते हैं। we call it as Peter. आज अपन पीटर पीटर करके बोलते हैं ना, Today we call Peter. उसका भी रहस्य आपको मालूम होगा। Today you will know the secret of it. क्यों पीटर का नाम पीटर करके दिया गया? Why he is named as Peter? क्योंकि पीटर जो है उनका घर का पहला आदमी है। Because Peter was the first person from the family. वही फर्स्ट बॉर्न है। He is the firstborn from the इसलिए family. उसका नाम क्या रखा गया? That's why his name was पेटर करके रखा गया है। Peter. देखो इस तरह नाम से आप उनका हिस्ट्री जान सकते हैं। So with their name, we can know their history. आप अयुब के बारे में, अयुब का बहुत अच्छा हिस्ट्री है। Ayub has a wonderful history. अगर समय मिला तो मेरा YouTube चैनल में जाके देखिए। If you have time, then you can check on YouTube. अयुब के बारे में डिकोडिंग होगा। There would be a decoding about Job. उसमें अयुब का पूरा हिस्ट्री रहेगा, उसका नाम को रखकर हिस्ट्री होगा। So with this name, there's an history. सो अतोन जो है, प्रभु ने कहा अतोन का पहलोटा को एक मेमना से छुड़ाया जाना चाहिए। So Lord said, the firstborn has to be redeemed by a lamb. Now ये lamb, what is this lamb? ये lamb क्या है? What is this lamb? देखो हर एक वर्ड जो है that is very very important. Now every word is important. हिब्रू में जो कुछ वर्ड दिया जाता है, So whatever words are given in हर एक Hebrew, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। every word is Now important. lamb को हिब्रू में बोलते हैं Now a lamb is called as सेह, say. SEH, सेह। Say in Hebrew. सेह बोलेंगे तो लैम्ब। Say, if you say say, that means lamb. इसको हिब्रू में लिखने के समय And when we write it in Hebrew, इसमें दो अक्षर आता है, there are two alphabets. एक सिन One is sin, और दूसरा जो है हे। and the second one is hey. ये दो अक्षर मिलकर हम उसे से करके बोलते हैं। तो हमें छुड़ाने वाला लैंप है। And this lamb is our redeemer. सो ये गधा को कौन छुड़ाएगा? So who's going to redeem this donkey? जो उसके सिर के ऊपर जो कांटा रखा गया है, The lamb which had a thorn वो thrown. वही छुड़ाने वाला है। The same donkey is going. So, The same lamb is going to पास redeem. ओवर जो है The Passover means वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, it's not only for us. गधा के लिए भी है It's also for the donkey. और गधा के लिए भी है, It's also for the donkey. वो गधा के लिए भी है। It's also for the donkey. किसके लिए है? For whom? गधा के लिए भी है। It's for the donkey. हाँ, हम गधे हैं, राइट? We are donkeys. और ये गधा छुड़ाया जाना चाहिए। This donkey has to be redeemed. इसकी वजह से यहाँ पर एक मेमना हमारे लिए मारे गए। That's why there was a lamb sacrifice. तो ये गधा जो है ऐसे ही नहीं दिया है, This donkey is not just given. उसके अंदर प्रोफेसीज है। There is a prophecy. सेम वे Same way. आप हर एक चीजों में प्रोफेसी देख सकते You हैं। would see prophecies in everything. ये जो है पेशाक के बारे में अपन देखते आ रहे हैं। And now we are seeing about Peshach. ये पेशाक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट करके अपन देख चुके हैं। This Peshach is very important. और हमारे लिए पेशाक कौन है? And who is Peshach for us? हमारे लिए मसीह ही वो पेशाक है। Christ is Peshach for देखो us. दोबारा उस वचन को पढ़ेंगे। Let's read that word once again. एक्सोडस 13 चैप्टर निर्गमन 13, उसका 13 वचन फिर से पढ़ेंगे। 13 वचन को पढ़ेंगे.
हाँ कि संधि मेमना हाँ लेकर उसको छुड़ा लेना, हाँ और यदि तुम उसे छुड़ाना चाहो हाँ तो उसका गला तोड़ देना हाँ और अपने सब पहिलौठे पुत्रों का बदला देकर छुड़ा लेना। ठीक है। नाउ नाउ अभी हर एक चीज में In everything, प्रभु का कुछ न कुछ संबंध रहता है। there will be some relation to God. ये पास ओवर कभी मनाना चाहिए? When should we celebrate the Passover? कौन सा महीने में सेलिब्रेट करना है? Which month should we celebrate it? पहला महीना। First month. और वो पहला महीना को क्या बोलते हैं? First month is called as what? अबीब भी बोलते हैं, We call it as Abibi. निशान भी बोलते We हैं, call it as Nishan राइट? also.